Today we are going to discuss about cognitive development theory, and this theory is put forward by Jean Piaget. Jean Piaget have classified cognitive development into 4 stages, and these stages are: first of all, sensory-motor stage, which is ranging from birth to 2 years, and similarly, second stage is pre-operation stage. This stage ranging from 2 to 6 years, and third stage is concrete operational stage, which is ranging from 7 to 11, and formal operation stage, which is ranging from 12 to adulthood. तो इस तरह से जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो इन 4 स्टेजेस में किस तरह से अकर होती है, उसमें अब हम 1 by 1 जो है वी विल फोकस ऑन दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट स्टेज, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज. तो नाउ सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये 0 to 2 years टाइम पीरियड तक ये सेंसरी मोटर स्टेज रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कि इस स्टेज में बच्चा अपने जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस होता है, उनको परफॉर्म करता है. जस्ट लाइक jerking hands, jerking legs, and blinking, sucking, reaching, and grasping, etc. इस तरह की जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उन मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता हुआ इस टाइम ड्यूरेशन में जो है वी कैन सी और वी कैन see a child perform all these activity just like that is looking, sucking, and grasping, etc. So now here Jean Piaget emphasizes that this sensory motor stage, a child show 3 type of the reaction, that is primary circular reaction, secondary circular reaction, and tertiary circular reaction. And according to him, this sensory motor stage have 6 substages. So he have classified first sensory motor stage into 6 substages. और ये 6 substages क्या हैं, तो ये 1 by 1 जो है अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे. तो according to him, the child, the infant, know the world only in term of their own sensory input. Means अपनी सेंस ऑर्गन्स का ही यूज़ करता है बच्चा यहाँ पे अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में. दैट इज़ ही कैन सी, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हियर, एंड देयर फिजिकल एंड मोटर एक्शंस on it, just like sucking, reaching, grasping, and they don't have internal mental representation of the object and events that exist outside their own body. तो इस तरह से जो पहला जो हमारा सब स्टेज रहेगा दैट इज़ रिफ्लेक्स फर्स्ट स्टेज विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 month. तो यहाँ पे जीन पियाजे ने एम्फेसिस किया है कि इन द फर्स्ट मंथ ऑफ that life of infant's behavior reflects innate reflexes. जो innate inborn जो भी reflexes होती हैं उन्हीं को ही ऑटोमेटिकली वो हर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, यही उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई. एंड द चाइल्ड अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट प्योरली थ्रू inborn innate reflexes, sucking, grasping, knee jerking, etc. So in very first that month of his birth, infant is seen to perform all these reflex activities. Now the second stage, which is ranging from 1 to 4 months. तो first 4 month में यहाँ पे, and this stage is commonly called as the primary circular reaction are shown by a child in this stage in पहले 4 महीनों में. तो ये हैं क्या, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चा जो है क्या करता है, अपने जो भी उसकी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उन्हीं को ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है. तो व्हाट हैपन व्हेनेवर वन इज़ रेगुलरली, इन्फेंट का जो भी मतलब बिहेवियर है ना, इट इज़ फोकस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ऑन देयर ओन बॉडीज़. एंड इन Piaget terminology this behavior is termed as the primary behavior. And whenever he is repeating these reflex actions, जो भी उसका प्राइमरी बिहेवियर है,
सपोज इफ़ ही जस्ट स्टार्टेड सकिंग, तो वो क्या कहेगा, उस सकिंग को ही क्या करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन फर्स्ट 4 months of the life of a child, of an infant, he is seen to perform his reflex actions, and he just repeat these reflexes over and again. And repetition of reflex action over and again, this is called as प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. जो भी एक्टिविटी बच्चे को पसंद आ रही है, अगर उसको सकिंग कर रहा है या तो वो सकिंग ही करता रहेगा, बार बार उस एक्टिविटी को रिपीट करेगा. अगर किसी चीज़ को उसने होल्ड किया, ग्रैस्प किया है, तो वो ग्रैस्पिंग को ही ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको रिपीट करता रहेगा. तो ये रिपीटिशन जो उसके रिफ्लेक्स एक्शंस का है, रिपीटेडली रिपीटिशन ऑफ दैट रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इसको जो है वो कहा जाता है. तो यहाँ पे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्टेज सेकंड में बच्चा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन शो करता है. और कुछ नहीं है बट अपने रिफ्लेक्स जो इनेट टेंडेंसीज हैं, इनेट रिफ्लेक्सेस हैं, उनकी रिपीटिशन जो है वो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहलाती है. एंड 1 to 4 month में यही परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव द स्टेज थर्ड. एंड in stage third infant is shown और he just perform the secondary circular reaction वो शो करता है यहाँ पे. एंड दिस स्टेज 3 इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8 month, 4 से 8 महीने तक का जो टाइम पीरियड है. इस स्टेज में व्हाट क्या है, बच्चा बहुत छोटा है एंड ही इज़ कैप्ट इन अ क्रैडल. वो क्रैडल में उसको रखा है. तो क्रैडल में रखा है उसको, और उस क्रैडल में क्या है, एक रैटल जो है, क्रैडल के साथ स्ट्रिंग के साथ जो है क्रैडल में एक रैटल को लटकाया हुआ है. अब बच्चा है वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो अपने जो भी उसके रिफ्लेक्स इनेट इनबॉर्न जो भी एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मोटर एक्टिविटीज़ हैं, उसको परफॉर्म करता हुआ तो वो दिखाई देता है. वो अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को, अपनी जो भी नीज एंड ऑल है उनको क्या करता रहेगा, जर्किंग करता रहेगा. इनेट टेंडेंसीज को करते हुए मतलब एक्सीडेंटली व्हेनेवर ही जस्ट पुल द स्ट्रिंग ऑफ दैट रैटल. स्ट्रिंग जब उसने रैटल का एक्सीडेंटली उससे पुल हुआ तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट साउंड अट्रैक्ट द चाइल्ड. और बच्चे को ये करना बहुत पसंद हुआ, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा. एंड देन ही स्टार्ट repeating this action over and over, which he have or she have learned accidentally. Whenever this accidentally acquired activities become permanent activities of an infant over a time period, over a repetition, this is called as secondary circular reaction. So this is a difference. What is the basic difference between secondary and primary? Primary circular reaction वो रिएक्शन होते हैं जब जो भी इनेट टेंडेंसीज हैं, जो भी रिफ्लेक्सेस हैं, इनेट रिफ्लेक्सेस जो भी बच्चे के हैं, उन रिफ्लेक्सेस को वो बार बार रिपीट करता है. उसको प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहा जाएगा. और इसको प्राइमरी बिहेवियर भी हमने इसको नाम दिया. लेकिन जैसे भी मतलब जैसे ग्रोन अप बच्चा हो रहा है तो और ज़्यादा इन अपनी इनेट टेंडेंसीज के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, उसमें अडेप्ट करने के लिए बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस वो एक्वायर कर रहा है. और यही व्हेनेवर जो भी एक्टिविटी उसने एक्सीडेंटली सीखी है और वही एक्सीडेंटली एक्वायर्ड एक्टिविटी उसकी परमानेंट बन जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड. इसमें भी क्या कर रहा है, ही इज़ रिपीटिंग द एक्टिविटी विच इज़ नॉट इनेट बट विच इज़ एक्वायर्ड, विच इज़ लर्नड एक्सीडेंटली, एंड दिस बिकम परमानेंट इन हिज बिहेवियर. दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो है इसको कहा जाएगा. एंड नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्शन. मतलब ये जो स्टेज है, स्टेज 4, इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 8 to 12 month. 8 to 12 month का टाइम पीरियड है यहाँ. और इस जो स्टेज है इसको कहा जाता है फर्स्ट स्पार्क ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है इस स्टेज को. एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय जीन पियाजे दैट ड्यूरिंग दिस स्टेज द वर्ल्ड अराउंड द इन्फेंट इज़ नाउ नॉट unknown, not unfamiliar to him or to her. He is now acquainting, he is not familiarizing with the world, with the environment that surrounds him.
and he just start interacting the object, interacting the people, interacting the environment with his that sensory actions, gestures, that smiling cues, babbles, and he just start imitating the reaction of the people interacting with him or her. तो रिपीटिशन और इसके साथ साथ क्या है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंसेस स्टार्ट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज. कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस का मतलब क्या हुआ, वी हैव द 5 सेंसेस. तो कोऑर्डिनेशन करना मीन्स कि सपोज कि अगर बच्चे को कहीं से साउंड आ रही है, सुन रहा है कहीं से आवाज़, तो उसी तरफ को वो देखना शुरू कर देता है. तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंसेस, मीन्स ऑडिटरी एंड साइट. सेंसेस में क्या हुआ यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन. क्लियर. तो सेंस कोऑर्डिनेशन, और ही जस्ट स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग हिज सेंसेस. और जैसे हमने बोला कि दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्पार्क ऑफ इंटेलिजेंस, बिकॉज यहाँ पे बच्चे को अननोन नहीं लग रहा है, फेमिलराइज हो रहा है धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट से, और उसको उसको वो इमिटेट कर रहा है, और मतलब जो भी सराउंडिंग पीपल हैं उसके साथ, और उसके साथ साथ जो है जो बच्चा है वो अपने उसको एक्सप्लोर, उसको जानना, फेमिलराइज अपने इन्वायरमेंट से हो रहा है. और उसके साथ साथ इसी स्टेज में जो है, जैसे इससे पहले बच्चे को ये नहीं था मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस की का नॉलेज नहीं था. नाउ इस स्टेज में जो है वो एक्वायर करता है नॉलेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी उसको एक्वायर करता है इस कोऑर्डिनेशन स्टेज में. और उसके साथ साथ इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी होती है. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स नोइंग दैट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट. बेशक आपको दिख नहीं रहा है, बट ऑब्जेक्ट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इवन इट इज हिडन. According to Piaget, object permanence is the child's awareness or his understanding about the object continue to exist even though the object cannot be seen or heard. अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है, नहीं हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, बट स्टिल वो जो चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये इस स्टेज में, फोर्थ जो स्टेज थी सब स्टेज, उसमें अराइज होता है, अकर होती है. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्टेज 5, एंड द स्टेज 5 इज रेंजिंग फ्रॉम 12 to 18 मंथ. तो अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे ने एम्फेसिस किया कि इस स्टेज में नाउ द इन्फेंट ही जस्ट स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, हैंडल द थिंग्स बाय हिज ओन वे, और बाय हैंडलिंग द थिंग्स ही इज़ नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ द इनसाइट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनसाइट का यूज़ तो नहीं करता है, बट ही जस्ट ट्राई by his trial and error, he just start to manipulate the things. And this is when one is manipulating the thing by his own, by trial and error method, hit and trial methods, we can say hit and trial method. So without using the insight, this is called as ये tertiary circular reaction stage को कहा गया है. ठीक है. तो ये जैसे सपोज अ चाइल्ड में ट्राई out different sounds or the action as a way of getting attention from the caregiver. उसको कोई attention नहीं दे रहा है, बट क्या कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को. he just start crying, he just start producing the sound or the action that to attract the attention of caregiver. क्लियर. तो ये इस तरह से है कि चीज़ों को किस मैनिपुलेट करना, अपने तरीके से हैंडल करने की टेंडेंसी जो है इंडिविजुअल में यहाँ पे आ जाती है. एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, इसको कहा जाएगा. एंड द लास्ट जो सब स्टेज है सेंसरी मोटर पीरियड का, तो वो है हमारा अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थाट्स और स्टेज 6 विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 18 to 24 मंथ. तो यहाँ पे नाउ जीन प्याजे हैव एम्फेसाइज दैट अब यहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन है दे डेवलप द सिम्बॉलिक थाट्स, द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट एंड थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इन टर्म ऑफ इंटरनल मेंटल एंटाइटीज और सिम्बॉल. तो वो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में मतलब सिम्बोलाइज करना जो है चीज़ों को वो सीखता है. एंड बच्चा जो है दे मे एक्सपेरिमेंट विद ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड्स, फर्स्ट प्रेडिक्टिंग व्हाट विल हैपन if they do something with an object
एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग देयर प्लान इनटू एक्शंस मीन्स अपने दिमाग में मतलब ही जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेटिंग द थिंग्स by making use of his insight here, or we can say that तो this is the first stage और ये यहाँ पे जो भी एक insight और understanding है about the environment वो बच्चे को यहाँ पे develop हो जाती है by the end of this 6 sub stage of sensory motor period. तो इसमें sensory motor period में हमने डिस्कस किया कि it has the 6 sub stages जिसमें ओवरऑल बच्चा जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन को शो करता है और इसके साथ साथ बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट इज डेवलप अमंग द इंडिविजुअल. तो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज आ जाती है हमारे पास वो है या पीरियड हम इसको कहेंगे दैट इज़ प्री ऑपरेशन स्टेज और प्री ऑपरेशन पीरियड और जो रेंज करता है हमारा 2 to 7 ईयर्स. तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल थॉट्स फीचर्स एंड फ्लोरिशिंग यूज ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द लॉजिक. तो बट स्टिल जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में कोई लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है तो सेंसरी मोटर स्टेज में भी बच्चे में कोई एक जो भी एक लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स लगाना नहीं सीख पाता है. इसमें भी अभी लॉजिकल डेवलपमेंट अभी भी उसमें नहीं हो पाती है. बट इसके साथ साथ इसमें क्या है कि इंट्यूटिव जो थॉट्स हैं वो इंट्यूशंस है ना इस तरह की जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एबिलिटीज़ हैं वो लर्नर में डेवलप होती है. एंड दिस स्टेज बिगिन व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट टू यूज सिम्बल्स एंड लैंग्वेज. Now this period of developing language and the concept. So the child is capable of more complex mental representations, that is words, images. He is still unable to use operations. Means we can say that जो logical mental rules है, जो logical thinking है, it is still is not properly developed during this pre-operation stage. And this pre-operation stage is further divided into 2 substages, that is pre-conceptual stage and intuitive stage. 2 stages में डिवाइडेड किया है जीन पियाजे ने pre-operation stage को. वो है हमारा pre-conceptual and intuitive stage. अभी pre जो conceptual stage की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो pre-conceptual stage ranging from 2 to 4 years. Here, cognitive development become increasingly dominated by the symbolic activities. Say, and the child can use symbol to stand for action. A toy, doll stand for real baby, or child role playing mommy or daddy. Language also developed during this stage, and according to Jean Piaget, language development is based on child's mental representational abilities, their abilities to let a symbol, a word, a stand for object in the environment. तो ये प्री कॉन्सेप्चुअल है. सिम्बॉलिक एक्टिविटीज़ जो है करता है बच्चा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और वो इस तरह से हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो है इसमें आता है. ठीक है. और उसके साथ अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंट्यूटिव स्टेज विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 ईयर्स का टाइम पीरियड है इंट्यूटिव स्टेज. और इस स्टेज में क्या है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वे इन विच चिल्ड्रन बेस देयर नॉलेज ऑन व्हाट दे फील और सेंस टू बी ट्रू. मतलब जो उसको लग रहा है, जो फील कर रहा है कि ये सही है तो यही सही है, जो देख रहा है ये सही है तो वही सही है. एंड येट दे कैन नॉट एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड व्हाट दे फील और सेंस. तो we can say that they cannot make use of the logics behind the things that exist, but they just feel कि what जो भी वो देख रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, this is the ultimate way to perform anything. तो ये इंट्यूटिव स्टेज है. बट जो लॉजिकल क्या इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या लॉजिक्स हैं, अभी भी इस स्टेज में वो इसको नहीं यूज़ कर पाते हैं. और इसमें सबसे पहले जो हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज है, यहाँ पे बच्चा
बहुत सारी फीचर्स की फीचर स्टेज के हैं, उसमें बहुत सारी जो भी मतलब जस्ट लाइक 3 तरह की चीज़ें अकर होती हैं यहाँ पे, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म एंड सेंट्रेशन। व्हाट इज दिस ईगोसेंट्रिज्म? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड्स थॉट एंड कम्युनिकेशंस आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक, दैट इज अबाउट देमसेल्फ or their point of view. It is inability to see the world through anyone else's eyes except on his own. According to Jean Piaget, egocentric child assumes that other people see, hear, feel exactly the same as the child does. Egocentrism means इसमें बच्चे में फीलिंग होती है कि जैसे वो सोच रहा है वही बाकी लोग भी सोच रहे हैं, किसी भी फिनोमिनन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में जो उसकी राय है, जैसे वो किसी चीज़ को परसीव कर, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वही दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो ईगोसेंट्रिज्म है इन अदर वर्ड कि जो मैं जिस तरीके से मैं किसी एक्टिविटी को कर रही हूँ दिस इज़ द बेटर वे टू परफॉर्म दिस। तो ये है ईगोसेंट्रिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चों में होती है। एंड एनिमिज्म की अगर हम बात करें तो एनिमिज्म क्या हुआ? एनिमिज्म मीन्स ट्रीटिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज लिविंग वन। तो इनएनिमेटेड चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग कंसीडर करना, ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टेज में रहती है। एंड फॉर एग्जाम्पल children bathing, dressing, feeding their doll as if they are alive, means they are treating the object as what, वो कि लिविंग है, ठीक है। तो और जैसे गुड्डे गुड़ियों के साथ बच्चे खेलते हैं एंड दे एज्यूम दैट कि दे आर रियल, है ना। तो एनिमिज्म है ये कि जब आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग कंसीडर कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसे आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं। तो एनिमिज्म जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेज का रहता है। एंड सेंट्रेशन का मतलब यहाँ में क्या हुआ? सेंट्रेशन इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, प्रॉब्लम और ऑब्जेक्ट एंड सो कैन नॉट सी द बिग पिक्चर। या सेंट्रेशन इज द नोटिस्ड इन कंजर्वेशन, the awareness that altering an substance appearance does not change its basic properties. Children at this stage are unaware of conservation. मतलब सेंट्रेशन का मतलब होता है एनीथिंग दैट अट्रैक्ट द अटेंशन, अटेंडिंग दैट आइडिया विच अट्रैक्ट योर अटेंशन। और इस स्टेज में बच्चों को जो है वो कंजर्वेशनल प्रॉब्लम भी रहती है। कंजर्वेशन का मतलब हुआ व्हेन एवर ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट, या हम ये कह सकते हैं कि इसको हाइट, वेट, शेप, साइज और शेप वेट का जो इल्यूजन है वो इस स्टेज में रहता है और वो सिर्फ उसी आइडिया को अट्रैक्ट करता मतलब अटेंड करता है जो उसकी अटेंशन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। तो ये सेंट्रेशन होती है। एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने कंजर्वेशन की बात की, जैसे इसको हम शो कर सकते हैं इस तरह से। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जब भी हम क्या वी कैन से कंजर्वेशन इज रेफर टू द आइडिया दैट एंड क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन appearance. At this stage, capability of logical reasoning is limited, as we have discussed earlier. कोई logical thinking बच्चा नहीं लगाता है, but मतलब वही जो उसको लगता है कि जो वो देख रहा है, जो वो मतलब उसका perception है, उसी को ही वो absolute मान लेता है। And child's thought processes are dominated by what? Immediate sensory impression. में जिस तरह से वो किसी चीज़ को परसीव कर रहा है वही एक फाइनल वे है उसके लिए उस चीज़ के बारे में। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी illustrated by asking the child to solve the liquid conservation problem. For example, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जीन प्याजे ने यहाँ पे टू, वी हैव द टू दैट इज़ A and B. सपोज ये जो यहाँ पे मिलीलीटर्स की अगर बात करें तो ये है हमारे पास कोई लिक्विड जो 50-50 ml का है, 50 ml, 50 ml, 50A, 50B. और whenever we pour it in a, तो then क्या हो जाएगा? Then it will be what? इसका जो है totally 100 ml है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बच्चे को बोलते हैं कि if we place
दिस 50 ml ऑफ लिक्विड प्लेस इन अ बी, अगर उसको उस टम्बलर में रखा जाएगा तो उस टम्बलर का में तो क्या होगा, टम्बलर जो है वो नैरो है, वो हाइटेड है, उसका हाइट ज़्यादा है बट उसका जो भी ब्रेड्थ की अगर बात करें वो कम है। तो बच्चा किसको अट्रैक्ट करेगा, किस में ज़्यादा पानी, अगर हम बोलें कि ए और सी किस में ज़्यादा लिक्विड है, किस में ज़्यादा पानी है, तो वो किसको अटेंड करेगा, वो अटेंड करेगा सी को। ये नहीं समझेगा कि इट हैज़ ये नैरो है, और जबकि हमने जो सेम क्वांटिटी बी में थी उतनी ही क्वांटिटी जो है हमने सी में डाली हुई है, और बी की क्वांटिटी जो है वो ए की इक्विवेलेंट थी। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है थिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, देयर दैट वेट एट्सेट्रा। क्लियर। अगर हम यही एग्जाम्पल बच्चे को पूछते हैं कि इफ वी शो हिम व्हाट 1 kg दैट आयरन, 1 किलो आयरन का बट्टा, और 1 किलो अगर हम बोलते हैं कॉटन का बॉल उसको दिखाते हैं, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब किसको अटेंड करेगा कि कौन बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज जो देखने में चीज़ बड़ी लग रही है वो उस वेट को कंसिडर नहीं करेगा, किसको कंसिडर करेगा, साइज़। तो ये वेट एंड साइज इल्यूजन जो है इस स्टेज में बच्चे को रहता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज कंजर्वेशन प्रॉब्लम इसको कहते हैं, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग अभी भी बच्चे में डेवलप नहीं हुई होती है इस स्टेज में। तो ये इस तरह से हुआ जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसमें 4 तरह की एक्टिविटीज़ थी। इगोसेंट्रिज्म मीन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे किसी इवेंट के बारे में मेरा जो भी व्यू है वही बाकी भी ऐसे ही सोच रहे हैं इसके बारे में, इगोसेंट्रिज्म। दूसरा एनिमिज्म मीन्स किसी भी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। और उसके साथ हमने डिस्कस किया सेंट्रेशन मीन्स अटेंडिंग दैट आइडिया विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड, एंड कंजर्वेशन whenever there is a illusion between what the that shape, weight, height, weight, शेप साइज, इसका इल्यूजन जो है बच्चे को वो जो है वो कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स में। तो ये इस तरह की मीन्स इलॉजिकल थिंकिंग जो है अभी भी प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे में होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द थर्ड जो हमारा ऑपरेशन पीरियड है वो है हमारा कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड। तो कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड की जब भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम, ये जो है वो रेंज करता है हमारा कहाँ से कहाँ तक, इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। बट इस स्टेज में जीन पियाजे हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग दिस कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज लॉजिकल थिंकिंग इज नाउ स्टार्ट डेवलपिंग। लॉजिकली थिंक करता है बट लॉजिक्स तो लगा लेता है, बट कैसे लॉजिक्स, कंक्रीट मीन्स जिस भी चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप में बच्चे के सामने वो प्रेजेंट है तो लॉजिकली उसको सॉल्व कर पाएगा। तो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी जो है वो इस स्टेज में बच्चे में डेवलप होती है, अपने अप्रोप्रिएट यूज़ करता है लॉजिक्स का, ठीक है। और इसमें बहुत सारी मतलब ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिन टू डेवलप, उसमें डेवलप होती है दैट serialization और क्लासिफिकेशन, एबिलिटी टू name, to identify set of object according to appearance, size, their characteristics, including the idea that one set of object can include another। तो वो चीज़ों को उनके शेप, साइज, अपीयरेंस, करेक्टर के बेसिस पे सीरियलाइज कर सकता है, क्लासीफाई करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है यहाँ। और उसके साथ साथ ट्रांजिटिविटी भी बच्चे में आती है। ट्रांजिटिविटी इज नथिंग बट इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स इन अ सीरियल ऑर्डर। सपोज कि इफ ए इज टॉलर देन बी इज टॉलर देन सी, देन A must be taller than C। तो इस तरह से ट्रांजिटिविटी है, तो लॉजिकल रिलेशनशिप जो है चीज़ों के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो लगा लेता है, ठीक है। और डिसेंट्राइजेशन यहाँ पे होती है, वेयर द चाइल्ड टेक इनटू अकाउंट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। डिसेंट्रिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड विल नो लॉन्गर perceive an exceptionally wide but short cup to contain less than normal white taller cup। और जो हमने पहले डिस्कस किया कि पहले हमने बताया कि अगर जैसे कि 25 ml लिक्विड अगर किसी वाइडर जार में रखा गया है और उसी को ही अगर हम
नैरो जार में प्लेस करेंगे तो उसके अमाउंट में उसका जो वॉल्यूम है इट रिमेन सेम। क्या चेंज होगा? शेप उसका चेंज होगा, बट उसका जो वेट, जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी इट विल रिमेन सेम। तो इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में इसमें आ जाती है। एंड रिवर्सिबिलिटी, नाउ रिवर्सिबिलिटी में यहाँ पे है कि चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट नंबर्स और ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वांटिटी, लेंथ और नंबर ऑफ आइटम unrelated to the arrangement or appearance of the object or item। तो ये है कि रिवर्सिबिलिटी वाला भी है कि एक जो अगर डिफरेंट चीज़ों में या डिफरेंट स्टेट में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो इट कैन बी रिवर्सिबल। जस्ट लाइक हमारा वाटर है, वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट ऑफ द दैट लिक्विड स्टेट ऑफ द वाटर, or but whenever we freeze it then it can convert into ice. So ice is solid state of the liquid, that water, and but whenever we place that ice in a room temperature then it further convert into what, the liquid state of that water। तो इस तरह से रिवर्सिबिलिटी की ऑब्जेक्ट कैन बी रिवर्स्ड। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है इसमें आता है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, द चाइल्ड जो था कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, इट इज़ द अल्टीमेट वे, इट इज़ द परफेक्ट और इट इज़ एप्रोप्रिएट वे दैट ही परसीव द थिंग्स। बट यहाँ पे इस स्टेज में आके जो ईगोसेंट्रिज्म प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं रहती है। उसका ये है कि जो मेरा परसेप्शन है ज़रूरी नहीं है कि बाकियों का जो व्यू पॉइंट है, परसेप्शन है, वो भी सेम रहेगा। तो ये जो चीज़, जो करेक्टरिस्टिक्स था प्री ऑपरेशन स्टेज में, ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में नहीं रहता है ये। और उसके साथ साथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चे में डेवलप होती है। तो इसमें अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक इन टर्म ऑफ सेट ऑफ interrelated principles rather than single bit of the knowledge। He used inductive, deductive approaches in term of reasoning and arrive at the conclusion। लेकिन इस reasoning को वो तभी apply कर पाता है if we have providing him the direct experiences concrete object की presence में। अगर हम बात करते हैं कि A इज़ टॉलर देन B, B इज़ टॉलर देन C, जो हमने इससे पहले बात करी, अगर हम उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे, श्याम इज़ टॉलर देन राम, राम इज़ टॉलर देन दैट कृष्णा, तो विच विल बी द विच इज़ टॉलेस्ट अमंग देम। तो वो अगर 3 डिफरेंट हाइट के लोग अगर हम उसको दिखा रहे हैं तो इजीली उसको क्या कर लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। और उसके साथ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंजर्वेशन। द चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट और अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो पहले था टम्बलर के एग्जाम्पल जो हमने दिया वो यहाँ पे भी आएगा, कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अगर 50 ml वाटर किसी वाइडर किसी बकेट में रखा है और उसी 50 ml वाटर को हम किसी नैरो बॉटल में प्लेस करते हैं तो उसमें ज़्यादा कम कुछ नहीं होगा, वो 50 ml ही रहेगा। बट हाँ, ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग उसका जो शेप है वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो भी अंडरस्टैंडिंग है कंजर्वेशन की, ठीक है, वो उसमें बच्चे में आ जाती है। एंड द लास्ट जो भी स्टेज था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, इट वॉज दैट इज़ वो है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 12 टू ऑनवर्ड, एडोलसेंस टू एडल्टहुड तक जो है ये स्टेज रेंज करता है। एंड यहाँ पे दिस इज़ वी कैन से दैट दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Ability to deal with abstract concept and abstract reasoning developed by about the age of that 11, और we can say formal operation stage में यहाँ पे बच्चा जो है वो उसकी fully cognitive जो abilities हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उसकी फंक्शनिंग है ना, तो वो डेवलप प्रॉपरली हो गई होती है। तो फॉर्मल में जो वी कैन से दैट ही कैन सक्सेसफुल, उसमें एक प्रॉपर कन्वर्सेशन मीन्स जो भी कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस जो है वो करने में कैपेबल होता है। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेंडेंसी इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है, और उसमें ही इज़ नाउ अवेयर अबाउट दैट अदर थिंग but usually in new expression of egocentrism, presume that they and other are thinking about the same thing, but उनको जो भी है वो different
हो सकती है ना, सोचने का तरीका। और वी कैन इसमें ये कह सकते हैं हम कि इस वाला जो स्टेज है, ऑल द दैट डेवलपमेंट जो एबिलिटीज़ हैं इसकी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की अगर बात करते हैं, उसकी सेंसेशन, उसकी परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, एंड देन दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल की बात करें, तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं अब क्या है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाती है। बच्चा इस स्टेज में स्टार्ट करता है थिंक एब्स्ट्रैक्टली and reason about hypothetical problems, and he began to think more about the moral, philosophical, ethical, social, political issues that acquire theoretical and abstract reasoning, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और वो डिडक्टिव लॉजिक्स, रीजनिंग का भी यूज़ करता है, फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, और उसके साथ साथ उसका जो थॉट बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ही कैन कैरी आउट सिस्टेमैटिक एक्सपेरिमेंट कर सकता है और सिस्टेमैटिकली किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली एंड मैथोलॉजिकली प्रॉपर एप्रोप्रिएट वे में डेवलप करने की टेंडेंसी बच्चे में डेवलप हो जाती है। एंड अंडरस्टैंडिंग दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, and the rules of any games or social system, they are developed by man by mutual agreement and hence could be changed or modified। तो इस तरह से ये जो एबिलिटीज़ हैं ये इसमें बच्चे में डेवलप होती है। तो इसमें हमने डिस्कस किया आज टोटली कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले जो था हमारा, अभी हमने डिस्कस किया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट फुली डेवलप होती है। बच्चा अपने टोटली मतलब एब्स्ट्रैक्ट टर्म में, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट टर्म में थिंक करता है और उसके हर एक जो भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उनकी अपना एक राय रखता है और अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेंडेंसी उसमें होती है। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उसमें डेवलप हो जाती है। और उससे पहले कंक्रीट ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया कि इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग तो होती है, लेकिन लॉजिक्स कैसे लगा पाता है। द कंक्रीट जो प्रॉब्लम्स होती है, जनरली लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करने की टेंडेंसी उसमें होती है, बट स्टिल लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है। उससे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसमें बच्चे को दैट इज़ अ शेप, साइज़, हाइट, वेट जो भी है, दैट इज़ अ साइज़ और वेट का जो इल्यूज़न है वो रहता है। उसको ईगोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम रहती है, सेंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, एनीमिज्म की प्रॉब्लम रहती है। और उसके पहले हमने डिस्कस किया सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमने डिस्कस किया कि ये स्टेज जो है इसमें बच्चा सब 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है, और बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज थोड़ा सा जो इंसाइट बच्चे में डेवलप हो जाती है। और मोर ओवर 3 टाइप ऑफ द सर्कुलर रिएक्शन इस पीरियड में शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब हुआ रिपीटिंग द रिफ्लेक्स एक्शन ओवर एंड अगेन, और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मीन्स whenever you have acquired anything accidentally through your own experiences, and then whenever you just repeat it, it becomes your permanent activity. And tertiary operation, tertiary circular reaction means whenever one is trying to manipulating the thing by his own way। तो मैनिपुलेशंस जो है तरीक़ों का, बाय व्हाट, हिट एंड ट्रायल मैथड विदाउट यूजिंग द इनसाइट, दिस इज कॉल्ड है। तो दिस इज टुडे वी हैव, दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन पियाजे ने 4 जो स्टेजेस थी उनमें डिवाइड किया था, दैट इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। थैंक यू सो मच।